ANSYS tool. Okay, now here first you have to identify what are the requirement or what are the given conditions are given in the problem. So while we seeing the problem, in the problem they mention that E is equals to Young's modulus, and see that observe it is common for both this member also and this member also. It's common for what? First member also and second member also. And area 200 mm square. It's common for this member also and this member also. Okay, like here. Here the supports are not shown, but this is a detailed figure. First node, second node, and third node. For first node, the hinge support is there, and for third node, again hinge support is there. Okay, so we try to create such a same diagram in the ANSYS figure. Okay, so we start from defining the given inputs, that is Young's modulus and area. So in that preferences, click on preferences, click on structural. Okay, if you performing any another kind of analysis, then click on thermal, ANSYS fluid, magnetic nodal, okay, age, high frequency, but we don't require it. Okay, we just consider for the structural. And in the second option, discipline option, that is H method. Now there are two types of methods are available. One is the H method and second one is the P method. So H method means in that meshing size is varying. The analysis is depend on what? Meshing size. That is the step size of that mesh. And in P method, the meshing size is defined by using a polynomial and equation. So that's why that P method we consider as a what? We consider as a polynomial as a defining function for the meshing. That's why that method is called as P method. And in H method we consider a step size. Okay, आपने एनेमा में देखा होगा स्टेप साइज क्या होता है, स्ट्रिप साइज क्या होता है, जो आपके प्रॉब्लम थे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम उसमें आपने देखा होगा, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा होगा, तो वहां पे स्टेप साइज जो होती है वही स्टेप साइज यहाँ पे होती है. सो बाय क्लिकिंग प्रेफरेंसेस, क्लिक ऑन स्ट्रक्चरल. H method is by default as it is, and click on OK. If you are using some another kind of version, then in that might be P method also present. Okay, might be P method is also present. But for our analysis, that our analysis doesn't consider lot much data or a lot much information, so we can choose any kind of method, H method also and P method also. But generally nowadays, after writing version 17, version 16. Okay, so only H method they are providing. So click OK, structural and H method OK. Okay, now go to preprocessor. Now preprocessor is what, solution is what, and general post processor is what. Preprocessor means what? Where we have to provide all the input data. What is the input data now? That is its properties, metal properties, thermal properties, if the thermal analysis is there, then fluid properties, if CFD analysis is there, then your action, then forces, then constraints, then areas. These all are what? The inputs. Okay, so preprocessor means what? Now we have to minimize this. Then next is what? Solution. Now in solution, we have to find out, obviously the name suggests solution. Okay, whatever the inputs are given, whatever the constraints are given, by using that we have to find out what? Solution. Okay, now after finding out solution, in what format we have to find out the results, that is obtained in general post processor. That is, this is post processor. Okay, in picture format we have to find out the result, in table form we have to find out the result. Okay, now then in a video format we have to find out the result. In any kind of format we have to find out the result that are available in terms of what, or in which, that is a post processor, general post processor. Now, so we start, that's what we have to define. Go to preprocessor. Okay, now element type. As I already told you that what is the meaning of element type.
Okay, suppose consider a trust member or a member. This is a member. Okay. So if this trust member, this plate, we have to analyze by using ANSYS software. So what we have to do over here, we have to divide this member into small number of parts like this. Okay, now this part, whatever you seen on your screen, this part, this one part, this second part, third, fourth, fifth, sixth, likewise, is one part is known as what? Element. Okay, or number of elements are available in ANSYS software. Okay, if you click on add, edit, delete, click on add, the number of elements are available. Depends on its application, depends on its characteristic, depends on its use. Number of elements are available. You can see over here. So ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एलिमेंट आप किसी भी एनालिसिस के लिए चूज कर लो और वहां पे वो काम कर लेगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है, हर एक एलिमेंट के कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, हर एक एलिमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका यूज होता है. ओके, तो जो एनालिसिस आप करने वाले हो वो एनालिसिस का आपको सिर्फ हर एक एंगल से नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप उसी हिसाब से आपको जो एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है, एनालिसिस के लिए एलिमेंट टाइप जो रिक्वायर्ड है वो चूज कर सकते हो. ओके, सो फॉर दिस to choose the analysis element type, click on element type, then after click on add, edit, delete, this window is going to open. Now in that none is defined, that means yet we didn't added any element type. So click on add. Now click on link. Okay, now we are going to select a link element. We are going to select for a link element. Now in that select this first element, 3D finite strain 180. It having the property which matches with the truss analysis. Okay, now click on that and click OK. Now link 1, type 1 link 180 is added. Okay, when you click on that, whatever the options are available for that element are shown in this window. ओके, बट अभी तक यहाँ पे हमें कोई उसके ऊपर कुछ काम नहीं करना है, इसलिए वी नेग्लेक्ट दिस. ओके, सपोज आप एक ही एनालिसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज करना चाहते हो तो आप फिर से ऐड में जाओ, बीम एलिमेंट के ऊपर सिलेक्ट करो एंड 2D 188 के ऊपर क्लिक करो, क्लिक ऑन ओके. ओके, सपोज आप और एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, बंद करेगा. Student, wait for some time. हेलो, हाँ स्टूडेंट, वी विल बैक. सो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट जो ऐड करना है वो आप कर सकते हो. ओके, सो हमें ये जो बीम 188 एलिमेंट जो हमने ऐड किया है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो जस्ट क्लिक, सिंपली क्लिक ऑन दैट. आफ्टर क्लिकिंग इट गेट सिलेक्टेड एंड क्लिक ऑन डिलीट, सो इट गेट डिलीटेड. नाउ क्लोज दिस विंडो. ओके, सो एनी डाउट इन दिस केस? तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी कि यहाँ पे नंबर ऑफ, अभी तो पहले टैब इतने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ 7 to 8 टैब आपको दिख रहे हैं. लेकिन अब जब आप इसे ओपन करते हो तो नंबर ऑफ टैब्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं, फिर से आप इसे ओपन करते हो तो नंबर ऑफ टैब फिर से बढ़ जाते हैं. ओके, और फिर से ये ऐड के ऊपर कोई ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो फिर से उसमें से ऑप्शन बढ़ जाते हैं. तो अब पहले क्या करना है, पहले ऐड करना है या डिलीट करना है या फिर रियल कांस्टेंट में जाना है,
ऐसा आपको हर बार कंफ्यूजन होता है। तो बेटर वे है कि जो प्री प्रोसेसर में आपको पहले जाना है, प्री प्रोसेसर में जो दिखेगा एलिमेंट टाइप उसके ऊपर जाना है, उसके ऊपर एड एडिट दिखेगा उसके ऊपर जाना है, यानी ये स्टेप आप फॉलो करो। इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पहले यही करना है या फिर मटेरियल प्रॉपर्टीज पहले करना होगा या फिर रियल एलिमेंट टाइप ही पहले करना होगा। इट्स नॉट लाइक अ केस। ओके, तो यहाँ पे आपको जो करना है वो जो सिंपली आपको यहाँ पे जो उन्होंने सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस में जाओ। इससे क्या होगा, आप में जम्बलिंग नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पे जब आप एग्जाम में या प्रैक्टिकल एग्जाम में जब भी आप एनालिसिस करोगे। ओके, सो अभी तक हमने एलिमेंट टाइप डिफाइन किया। नाउ रियल कांस्टेंट क्या है? रियल कांस्टेंट ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है कि जो आपको बाहर से कुछ डिफाइन करने की जरूरत पड़े, बाहर से यानी यानी आउट ऑफ द सिस्टम ने आपको डिफाइन करना है। यानी सपोज वो टाइप के लिए, वो एलिमेंट टाइप के लिए, ये किसके लिए होता है? एलिमेंट टाइप के लिए। वो एलिमेंट टाइप के लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा, हेलो, ओके, कुछ एडिशनली आपको कुछ डिफाइन करना है। जो सिस्टम में दिया है वो तो आपने डिफाइन कर लिया, लेकिन सपोज सिस्टम में आपको यंग्स मॉडुलस प्रोवाइड किया है, पॉइजन्स रेशियो प्रोवाइड किया है, लेकिन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं किया है। तो अगर वो आपको खुद से डिफाइन करना होगा, यानी आपको एनालिसिस के लिए लग रहा है, इट रिक्वायर्स फॉर योर एनालिसिस, बट अगर आपको ये रिक्वायर्ड है तो आपको रियल कांस्टेंट में जाना है। ओके, सो दिस इज समवॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल कांस्टेंट्स। सो रियल कांस्टेंट हमें ये एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ये आप ध्यान में रखो, सिर्फ ये वर्जन के लिए हाँ, लेकिन इसके पहले का जो वर्जन था 2015-16, उसमें रियल कांस्टेंट आपको ये एनालिसिस के लिए डिफाइन करना पड़ता था। कीप दिस इज इन योर माइंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन द मटेरियल प्रॉपर्टीज। सो मटेरियल प्रॉपर्टी के लिए आपको जाना है, क्लिक ऑन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड देन क्लिक ऑन मटेरियल मॉडल्स। सो न्यू विंडो विल बी ओपन, material properties, material models. Now click on structural, then linear, then elastic and isotropic. So here you have to define these two terms, Ex and Prxy. Ex means what? The Young's modulus, and Prxy means what? The Poisson's ratio. Now what are the given things in the problem? That first we have to observe. E is given, Poisson's ratio is not given. Okay, no issue. So we define E value. What is the E value? 200 GPa. Okay, so we define 200, but always we consider that unit of force is in Newton and unit of length is in mm. अगर वो एरिया है तो mm स्क्वायर होगा, अगर वॉल्यूम है तो mm क्यूब होगा। ओके, सो यहाँ पे GPa का मतलब क्या होता है? 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इसे हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 200 इंटू 10⁻3। सो यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ E3। ओके, 10⁻3 कैसे लिखना है वो समझ में आया? और Prxy का वैल्यू आपके पास नहीं है तो लीव एट ब्लैंक एज इट इज, क्योंकि जो आपने कैलकुलेशन किया है वो देखो ब्लैंक। ठीक है, मैं आपको पहले क्लिक करके बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक करो और ओके बोलो। It shows one note, Prxy will be set to 0. Okay, we accept it. अभी वो 0 हो गया तो आप बोलोगे सर कहीं पे तो Prx का यानी पॉइजन रेशियो का वैल्यू आ गया और वो उसने वो 0 से मल्टीप्लाई कर लिया तो सब कैलकुलेशन 0 हो जाएगा। नहीं, जब आप कैलकुलेशन करते हो 2D ट्रस एनालिसिस के लिए, सो इन दैट 2D ट्रस एनालिसिस Prxy या पॉइजन रेशियो कहीं पे भी नहीं आता है, तो आपने वो कंसीडर किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसे कुछ वैल्यू कंसीडर किया तो भी चलेगा। जनरली Prxy the Poisson ratio value is varies from 0.2 to 0.3, 0.21, 0.22, 0.23, 29 likewise. Okay, like बाद में मुझे पता चला कि जो मटेरियल प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन किया था उसमें कुछ गलत है। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग 200 मैंने 210 डिफाइन कर दिया। तो आपको फिर क्या करना है, उसे एडिट करना है। एडिट कैसे करोगे? यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका जो मॉडल आपने क्रिएट किया है प्रॉपर्टी के साथ वो क्रिएट हुआ है, तो उसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक ऑन दैट, यहाँ पे आपको मिलेगा वो वैल्यू। आप फिर से एडिट कर सकते हो, तो करेक्टेड वैल्यू ये वो डालता है सिंपली।
नाउ सेक्शन, सेक्शन में आपको क्या डिफाइन करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फॉर दैट गो टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लिंक एलिमेंट, क्लिक ऑन ऐड। सेक्शन आईडी वो पूछ रहा है, क्योंकि सेक्शन आईडी क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है ट्रस्ट मेंबर, 1 और 2, तो इसलिए पूछ रहा है कि आपको कितने सेक्शन डिफाइन करने हैं। तो मुझे एक ही डिफाइन करना है, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए एरिया कितना है 200 सॉरी, दोनों के लिए एरिया क्या दिया है उन्होंने 200 mm²। सो यहाँ पे हम सिर्फ जो आपको रिक्वायर्ड है 1 डालो या फिर 100 डालो, कोई वहां पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कंसीडर दैट आईडी इज व्हाट 1। ओके, नाउ सेक्शन डाटा लिंक एरिया में आपको पुटअप करना है, कितना होगा वो एरिया 200, और ऑब्वियसली उसका यूनिट क्या है mm² में। ओके, तो mm² में mm² ही आपको रहने देना है और क्लिक ऑन ओके। अब तक हमने क्या डिफाइन किया स्टूडेंट्स, एलिमेंट टाइप, उसमें ऐड एडिट एलिमेंट टाइप किया, रियल कांस्टेंट में कुछ भी हमें करना नहीं था, मटल प्रॉपर्टीज में हमने मटल प्रॉपर्टीज में मटल मॉडल डिफाइन किया, एंड देन वी डिफाइनिंग इट्स एरिया विथ सेक्शन। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट, अभी जो नेक्स्ट टास्क है वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यानी वो लेंथी टास्क है। क्या हमें मॉडलिंग करना है, तो मॉडलिंग कैसे करना है आपको, क्लिक ऑन मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी क्या, मॉडलिंग यानी आपको ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये ऐसे का ऐसे ही वहां पे पिक्चर बनाना है। पहले तो हम इसे पिक्चर कंसिडर करेंगे, बाद में इसे मॉडल कंसिडर करेंगे। ओके, सो इट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, दिस पॉइंट। ओके, सो वी क्रिएट की पॉइंट्स इन एक्टिव CS। क्या करना है, मॉडलिंग में क्रिएट की पॉइंट इन एक्टिव CS। ओके, की पॉइंट नंबर आपको डालना है तो आप गिवन कर सकते हो, अदरवाइज लीव ब्लैंक। और यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट के वो जो की पॉइंट नंबर 1 है, ये वाला दिस वन, इसके आपको कोऑर्डिनेट डालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, तो ब्लैंक करो। एक तो यहाँ पे आप 0 लिखो तो भी चलेगा, नहीं तो आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो भी चलेगा, क्योंकि ब्लैंक अगर आपने वहां पे छोड़ दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो 0 0 कंसिडर करता है। अभी मैं इसे अप्लाई करूंगा, अप्लाई क्यों करूंगा, क्योंकि ओके किया तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा और इसे फिर से ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। सो बेटर वे अप्लाई करो। नाउ की पॉइंट विथ नंबर 1 and with coordinate 0 0, it created in a background, you can see over here, यहाँ पे वो create हुआ है। Now next key point का क्या coordinate है, this one 6, second key point, 500 on x axis and y is what 0, so 500 और y as it is 0 छोड़ दो, apply। ओके, बैकग्राउंड में वो क्रिएट हुआ है, अभी वो हमें उसे एक स्टेप है वो करना पड़ेगा, तभी वो विजुलाइज होगा, वो देखते हैं बाद में। और थर्ड जो की पॉइंट है वो कहाँ पे, डाउन साइड में, उसका x कितना है, यहां से x टोटल डिस्टेंस 500 प्लस 400 दैट इज 900, एंड डाउन साइड कितना है 300, सो माइनस 300 होगा, सो 900 एंड माइनस 300। ओके ओके, प्लॉट मल्टी प्लॉट। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन फिट, क्योंकि हमारा प्रोसीजर तो सही है, तो हमने कुछ क्रिएट किया है तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि वो एक्सपांड हो गया था। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक एंड फिट करना है। सिंपली जूम करने के लिए आपको माउस स्क्रॉल बार क्लॉकवाइज घुमाना है एंड जूम आउट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और तभी भी आपको नहीं ये विजुलाइज हो रहा है तो प्लॉट में जाओ, यहाँ पे ऊपर मेनू बार में एंड क्लिक ऑन मल्टी प्लॉट। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पॉइंट्स। नाउ हियर वी हैव टू क्रिएट व्हाट, लाइंस। तो की पॉइंट क्लोज करो, क्लिक ऑन लाइंस, लाइंस स्ट्रेट लाइन, सिंपल। तो टू क्रिएट लाइंस click on this point and extend up to this. Okay, then again just click on this point। अभी आप क्लिक छोड़ दो वहां पे, ऐसा नहीं कि आपको वो पकड़ के रखना है माउस का लेफ्ट की, एंड एक्सटेंड अप टू दिस। दो लाइन आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गए। नाउ ये विंडो का काम हो गया है, इसे ओके कर दो। सो इन एंड आउट अप टू दिस,
Any doubt up to this, students? No, sir. Okay. ओके आपका जो नेम है ना, आप अपने रोल नंबर से पुटअप करो यहाँ पे। आपको आपके रोल नंबर पता है? एवरीवन नोज योर रोल नंबर? सो आपको जो ना आपका नाम डालना है ना, वो ऐसे कुछ भी नहीं डालना है। यानी आपका नाम तो सही है, बहुत अच्छा है वो, लेकिन आपको आपके रोल नंबर से यहाँ पुटअप करना है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आपके अटेंडेंस मार्क करते हैं, सो इट क्रिएट वेरी काइंड ऑफ टेडियस वर्क। So try to provide your name with roll number. So इसे एडिट करो आप पहले तो। ठीक है। सो अगेन वी गो बैक टू आवर प्रॉब्लम। सो यहां तक आपने क्रिएट किया। नेक्स्ट क्या दिख रहा है वो देखते हैं अभी। सो दिस आफ्टर दिस क्रिएटिंग on this node point 1, sorry, on key point 1 and on key point 3 there is a hinge support. ओके, टाइप्स ऑफ सपोर्ट मैंने आपको बोले थे, कौन कौन से थे? एक रोलर सपोर्ट, एक हिंज सपोर्ट और एक फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करता है, हिंज सपोर्ट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करता है, एंड फिक्स सपोर्ट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करता है। ओके, सो यहां पे हमें सपोर्ट अप्लाई करना है। सपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे? नाउ गो टू लोड्स, define loads, apply structural, and in go to displacement. Okay, on displacement जाने in after going to displacement, क्योंकि हमें displacement restrict करना है ना, तो सपोर्ट अप्लाई होगा। सपोर्ट का मीनिंग क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट है आपको वो जीरो करना है। ऑब्वियसली जिस जगह पे आप अभी बैठे हो, यानी सपोज चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर, वो चेयर या बेड किसी ऊपर तो प्लेस है, यानी आपके जो फ्लोर है या बिल्डिंग या फिर आपका हाउस, आपका घर, तो वो तो फिक्स है ना, कॉलम या फिर बीम्स उसके ऊपर, उसके वजह से वो फिक्स हुआ है। यानी अगर वो हिलेगा, इफ इट शोइंग द डिफ्लेक्शन, देन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। यानी आपने वहां पे क्या किया है, आपने उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो किया है। तो अभी हम हिंज सपोर्ट अप्लाई करने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो करेंगे। सो ऑन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है? ऑन नोड्स, ठीक है, अभी नोड से अप्लाई नहीं किया है तो एक काम करते हैं, पहले एनालिसिस मेशिंग करते हैं, फिर नोड्स जो आपको कंटिन्यू होगा। ठीक है, पहले मेशिंग करते हैं। सो मेशिंग के लिए आपको क्या करना है? इन मेशिंग, आफ्टर मॉडलिंग गो टू मेशिंग, मेश लाइंस, ये आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना है। लेकिन अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूं तो ये गलत हो जाएगा। फॉर दैट गो टू इन मेशिंग, साइज कंट्रोल, मैन्युअल साइज। ये क्या दिख रहा है आपको अभी? ये एरिया है या वॉल्यूम है या फिर लाइन है? इट्स अ लाइन। सो क्लिक ऑन लाइन, ऑल लाइंस, क्योंकि हर एक लाइन के लिए हमें सेम साइज डिफाइन करना है। ये लाइन और ये लाइन के लिए हमें सेम साइज डिफाइन करना है। तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, एलिमेंट एज लेंथ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट डिवीजन। दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो क्या है वो देखते हैं अभी। These are the two lines. तो एलिमेंट डिवीजन एंड नंबर ऑफ, देखो एलिमेंट एज लेंथ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट डिवीजन, तो दोनों में अगर मैं यहां पे कुछ वन पुटअप करता हूं तो उसका मीनिंग अलग है, और यहां पे वन पुटअप करता हूं तो उसका मीनिंग अलग है। हमें कहां पे पुटअप करना है? एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट डिवीजन, बॉटम साइड में। यहां पे कुछ नहीं हमें इंसर्ट करना है, यहां पे वन पुटअप करेंगे और ओके। नाउ इसका मीनिंग क्या है वो हम ये पेंट में देखेंगे। अगर हम एलिमेंट एज लेंथ, सपोज जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका जो लेंथ है वो 100 है, 100 यूनिट्स, और इसका भी जो लेंथ है वो 100 यूनिट्स है।
और यहाँ पे एलिमेंट डिवीजन 1 डाला है हमने, एंड यहाँ पे एलिमेंट एज लेंथ 1 इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे एलिमेंट डिवीजन डिवीजन एंड लेंथ, एलिमेंट डिवीजन एंड एलिमेंट लेंथ, अगर एलिमेंट डिवीजन 1 डालते हैं यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो टोटल एलिमेंट, टोटल लेंथ, टोटल लाइन एज अ 1 एलिमेंट कंसिडर करेगा, ये पूरा एक लाइन एज अ 1 एलिमेंट। और अगर एलिमेंट एज लेंथ 1 इंसर्ट करते तो वो ये टोटल ऑब्जेक्ट का 100 पार्ट में डिवाइड करेगा। 100 क्यों? क्योंकि ये 100 यूनिट का लेंथ है। अगर ये 273 का होता इसका लेंथ, तो 273 पार्ट में इसे डिवाइड करता। दैट इज द डिफरेंस। और हमेशा आपको एनालिसिस, 2D ट्रेस एनालिसिस करते समय एलिमेंट एज लेंथ क्या इंसर्ट करना है? 1। ओके, सो आई मिनिमाइज दिस। नाउ वी जस्ट, अभी तक यहां पे क्या हुआ है? मेशिंग नहीं हुआ है। अगर हम एनालिसिस में मेशिंग करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो मेशिंग कंपलसरी करना पड़ेगा। कंपलसरी हमें वहां पे मेशिंग करना ही पड़ेगा। ओके, सो अभी तक हमने सिर्फ क्या डिफाइन किया है? साइज की, जो एलिमेंट, जो लेंथ है, जो ट्रस मेंबर है, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो, तो वो क्या सिलेक्ट किया हमने? 1। अभी इसे हमें मेशिंग करना है, तो मेशिंग के लिए आपको जाना है मेश लाइंस एंड जस्ट पी कॉल, या फिर आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, या फिर पी कॉल करो, तो पी कॉल हो गया। नाउ मेशिंग इज डन। तो मेशिंग अगर आपको आपने किया है वो देखना है, तो आपको जाना है प्लॉट नोड्स, या आपको नोड्स दिखेंगे। पहले ये क्या थे? की पॉइंट। अभी ये क्या हो गए? नोड्स, क्योंकि हमने एक मेंबर एज अ 1 एलिमेंट कंसिडर किया है। ओके, नाउ प्लॉट मल्टी प्लॉट। नाउ वी आर अप्लाइंग द लोड्स, दैट इज अ कंस्ट्रेंट। डिफाइन लोड्स, अप्लाई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट ऑन नोड्स। पहले हमने जब नोड सिलेक्ट किया था, तो उसने यहाँ पे एक मैसेज शो किया था, आपने देखा कि नहीं मुझे पता नहीं। उसने बताया था कि आपने अभी तक कोई भी नोड्स डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि हमने मेशिंग नहीं किया था। नोड्स कब क्रिएट होते हैं? जब आप मेशिंग करते हो तब। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना है? डिफाइन लोड्स, अप्लाई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट ऑन नोड्स। तो ऑन दिस एलिमेंट, सॉरी ऑन दिस नोड एंड ऑन दिस नोड, क्योंकि ये दोनों जगह पे सपोर्ट सेम है, इसलिए हम एक ही बार में इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो आप इसे एक बार में सिलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि हमारी फिगर में दोनों जगह पे हिंज सपोर्ट है, इसलिए हम उसे दोनों को एक ही टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं। नाउ क्लिक ऑन अप्लाई। नाउ दिस विंडो विल बी ओपन, और वहां पे ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। देखो यहाँ पे अप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम टू बी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यानी क्या? वहां पे रेस्ट्रिक्ट करना है। ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे सिलेक्ट करो, और उसका वैल्यू आपको क्या डालना है? 0। ओके, क्लिक ऑन ओके। देखो यहाँ पे हिंज सपोर्ट आ गया। ये ट्राइंगल वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन रेस्ट्रिक्ट करेगा, और ये ट्राइंगल है वो वाई डायरेक्शन रेस्ट्रिक्ट करेगा। सिमिलरली ओवर हियर, ये जो ट्राइंगल है हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रेस्ट्रिक्ट करेगा, और जो वर्टिकल ट्राइंगल है वो वर्टिकल डायरेक्शन रेस्ट्रिक्ट करेगा। अगर यहाँ पे रोलर सपोर्ट होता तो एक ही ट्राइंगल आता, तो वर्टिकल रोलर सपोर्ट या फिर हॉरिजॉन्टल रोलर सपोर्ट। तो यहां तक क्लियर है? यश कनौजिया, कदम, अखिलेश मराठे, अब्दुल, बुधभूषण, एनीवन इज देयर? क्या फिर सिर्फ स्टार्ट करके कहीं चले गए? यस सर, अंडरस्टैंड। ओके, क्या अब्दुल, कनौजिया सब सो गए क्या? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। सो यहां पे आपको अभी नेक्स्ट रिमेनिंग क्या है? डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करना है।
ये आप यहाँ पे देख रहे हो डाउनवर्ड फोर्स, उसका वैल्यू कितना है 12 किलो न्यूटन। और मैंने आपको बोला कि अगर फोर्स आपको अप्लाई करना है तो उसका लिमिट, उसका यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन। तो 12 किलो न्यूटन का आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में। सो सिंपली उसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। सो अगेन बैक टू द टूल एनालिसिस। वैसे ही कैसे करना है, गो टू लोड्स, डिफाइन लोड्स, अप्लाई, स्ट्रक्चरल, फोर्स मूवमेंट। अभी कहां पे जाना है, डिस्प्लेसमेंट का काम हो गया। अभी नाउ वी हैव टू गो टू व्हाट, फोर्स। क्या क्या अप्लाई कर सकते हो आप देखो, फोर्स अप्लाई कर सकते हो, प्रेशर, टेम्परेचर, इनर्शिया, जो भी आपके पास इनपुट से वो आप अप्लाई कर सकते हो। हर एक का मेथड अलग अलग होता है। सो नाउ फोर्स कहां पे अप्लाई करना है, नोड के ऊपर। हमेशा आप जो भी इनपुट दोगे वो नोड के ऊपर ही देना, क्योंकि किसी भी एनालिसिस का जो मेन सबसे माइनर पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट, वो होता है नोड। जिससे आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, सर्कल का बेसिक पार्ट क्या होता है, जिससे सर्कल स्टार्ट होगा, पॉइंट। जैसे हमारी बॉडी में सबसे माइन्यूट बेसिक पार्ट कौन सा है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसी। उसके बाद हमारा टिश्यू बनता है, फिर उसके बाद ब्लड बनते हैं, ब्लड बनता है, ऐसा। वैसे यहाँ पे अगर एनालिसिस में आप कुछ भी अप्लाई करना चाहते हो, वो हमेशा नोड के ऊपर अप्लाई करो। ओके, सो फोर्स अप्लाई करना है नोड के ऊपर। कौन से नोड के ऊपर, ये नोड के ऊपर अप्लाई। उसका वैल्यू क्या है, एफ एक्स है क्या, एफ वाई क्या, एफ जेड है, एफ वाई, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है ना, वर्टिकल फोर्स है, डाउनवर्ड। सो उसका वैल्यू जो आपको अप्लाई करना है वो 12,000, लेकिन क्या, निगेटिव, इसलिए हमें यहाँ पे निगेटिव पुटअप करना है। अगर पॉजिटिव किया तो वो क्या, अपसाइड अप्लाई हो जाएगा। क्लिक ऑन ओके। नाउ डाउनवर्ड फोर्स इज शोन ओवर हियर। ओके, एनालिसिस करते समय आप यहां पे क्लिक करते जाओ, सेव डीबी। डीबी मींस व्हाट, डाटाबेस, यानी जो आपने परफॉर्म किया है जॉब वो सेव होते जाएगा, होते जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? व्हाट द स्टेप्स दैट वी परफॉर्म येट, दैट वी रिकॉल फर्स्ट? Yes, sir. एलिमेंट टाइप, Yes, यस sir. ओके ओके। एलिमेंट टाइप, रियल कांस्टेंट में कुछ नहीं किया, मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफाइन किया, देन सेक्शंस डिफाइन किया, मॉडलिंग, मॉडलिंग में क्रिएट में की पॉइंट्स क्रिएट किया, एंड आफ्टर दैट क्रिएटिंग की पॉइंट्स वी डिफाइनिंग द लाइंस, एंड मेशिंग किया। मेश में पहले साइज डिफाइन किया मैनुअल साइज में जाके, एंड देन वी परफॉर्म मेश लाइंस। आफ्टर मेशिंग वी डिफाइनिंग द लोड्स, अप्लाई, डिलीट, अप्लाई में गए सिर्फ। Now everything is done. Okay, now go to solution. Click on solve, current LS. LS means what? Load step. Load step. Click on LS. वो पूछ रहा है कि आपको solution begin करना है क्या? Yes, we have to begin it. Okay. It takes some time. Okay. Solution is done. जब तक solution done का मैसेज नहीं आता है तब तक आपको वेट करना है। ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस टाइप। अगर आपका एनालिसिस बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ इनपुट्स उसमें ज्यादा है, कंस्टेंट ज्यादा है, फोर्सेस ज्यादा है, तो इट टेक्स सम मोर टाइम। ओके, इंडस्ट्रियल एनालिसिस जो होते हैं, इट टेक्स मोर देन 1 डे, 1, 2, 3 days लाइकवाइज। और सॉल्व करने के लिए भी अगेन सेम टाइम उसको रिक्वायर्ड होता है, 1 day, 2 day लाइकवाइज। ओके, तो अभी से क्लोज करो, क्लोज दिस। नाउ एनालिसिस का पार्ट, प्री प्रोसेसर इज ओवर, सॉल्यूशन इज ओवर। बस सॉल्यूशन में आपको इतना ही करना है। नाउ अभी रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। रिजल्ट क्या क्या बोला उन्होंने, देखते हैं। रिजल्ट जो आपको फाइंड करना है, पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। नाउ फॉर डिस्प्लेसमेंट गो टू जनरल पोस्ट प्रोसेसर। ओके, नाउ यहां पे एक प्लॉट रिजल्ट एंड लिस्ट रिजल्ट। प्लॉट में रिजल्ट प्लॉट होगा एंड लिस्ट में रिजल्ट लिस्ट होगा। ऑब्वियसली डाटा दोनों में सेम ही रहने वाला है, लेकिन प्लॉट में आपको विजुअलाइज होगा एंड लिस्ट में आपको लिस्ट मिलेगी। तो हम पहले प्लॉट में जाएंगे। पहले हमें देखना है कि विद द हेल्प ऑफ दिस टू कंस्टेंट्स 1 and 2 एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ये शेप डिफॉर्म कैसे होता है। अगर डिफॉर्म कैसे हो रहा है वो देखना है तो क्लिक ऑन डिफॉर्म शेप एंड क्लिक डिफॉर्म प्लस अनडिफॉर्म। कौन सा भी एक ऑप्शन चूज करो। पहले में सिर्फ डिफॉर्म शेप दिखेगा आपको, सेकंड में आपको डिफॉर्म प्लस अनडिफॉर्म दिखेगा, एंड इन थर्ड डिफॉर्म प्लस
अनडिफॉर्म विथ एज, तो हम सेकंड चूज करते हैं जनरली, क्लिक ऑन ओके। नाउ दिस इज डिफॉर्म शेप, द व्हाइट लाइन शोज द एक्चुअल मॉडल एंड द ब्लू लाइन शोज व्हाट, अ डिफॉर्म शेप। ओके, नेक्स्ट अभी आपको देखना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस तरीके से, इन अ फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो गो टू नोडल सॉल्यूशन, नोडल सॉल्यूशन, डीओएफ सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम। ओके, दिस विंडो विल बी शो। अभी ये क्या शो कर रहा है कि जहां पे आपका ब्लू रीजन है, यानी ये कलर, ये कलर देखो, दिस कलर, जो कलर कहां पे, ऑब्वियसली सपोर्ट के ऊपर, और सपोर्ट के ऊपर आपका डिफॉर्मेशन मिनिमम होने वाला है। तो एट दिस पॉइंट एंड दिस सेकंड पॉइंट, वहां पे डिफॉर्मेशन का वैल्यू क्या है, 0 से लेके 0.079 तक। और जैसे जैसे आप राइट साइड बढ़ते जाओगे वैसे वैसे डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो रेड रीजन जहां पे, यानी कहां पे, एट दिस, जहां पे फोर्स अप्लाई किया है ऑब्वियसली, सो वहां पे डिफॉर्मेशन कितना है, 0.632 से लेके 0.712 तक। ओके, तो ये रिजल्ट आपको सेव करना है। कैसे सेव करना है मैं आपको बोलूंगा बाद में। ओके, तो ये आपका हो गया एलिमेंट नोडल सॉल्यूशन। अभी यही आपको अगर लिस्ट फॉर्म में देखना है, ये कौन से फॉर्म में हो गया, वर्चुअल फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में। अगर यही आपको लिस्ट फॉर्म में देखना है तो लिस्ट के लिए आपको प्लॉट रिजल्ट क्लोज करना पड़ेगा एंड लिस्ट में जाना पड़ेगा। नोडल सॉल्यूशन, यहां पे देखो नोडल सॉल्यूशन, डीओएफ सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम। ओके, ये आपको लिस्ट फॉर्म में शो करेगा, लेकिन ये किसके लिए शो करेगा, सिर्फ 3 नोड्स के लिए। और नोड कितने हमने डिफाइन किए थे, 3 ही नोड, 1, 2 एंड 3। सो ये फर्स्ट नोड, सेकंड नोड और ये थर्ड नोड। इसे भी आपको सेव करना है, फाइल सेव एज, जो आपका वर्किंग डायरेक्टरी आपने क्रिएट किया है डेस्कटॉप के ऊपर, इसमें यहां पे आप इसे नेमिंग कर सकते हो, मॉडल डिस्प्लेसमेंट। इसे क्लोज करो, सेव करो, नाउ इट क्लोज दिस। ओके, इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन निकालना है। और उन्होंने कुछ क्या बोला है, और स्ट्रेसेस फाइंड करना है। तो स्ट्रेसेस के लिए आपको क्या करना है, टेबल फॉर्म में आपको स्ट्रेसेस फाइंड करना है। उसके लिए आपको टेबल डिफाइन करना पड़ेगा, ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। नोडल सॉल्यूशन तक आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so after that element table in a for stress, so define table, यहाँ पे none define है, click on add। okay, कोई तो उसे नाम प्रोवाइड कर दो, सपोज स्ट्रेस। नाउ क्लिक ऑन स्ट्रेस, सबसे नीचे आओ, बाय सीक्वेंस नंबर, यहां पे आपको जाना है एलएस, बाय सीक्वेंस नंबर एलएस। यहां पे हमने कुछ भी नाम डिफाइन कर सकते हो, सपोज जीजीएस डिफाइन करो, कोई वहां पे दिक्कत नहीं, और नहीं भी किया तो भी चलेगा। बाय सीक्वेंस नंबर एलएस, और यहां पे एलएस जब सिलेक्ट होगा तो उसे 1 करो। ओके, अब इसे क्लिक ओके करो। नाउ यहां पे आपको टेबल क्रिएट होता हुआ दिखेगा। नाउ क्लोज दिस। ओके, नाउ प्लॉट एलिमेंट टेबल, यहां पे देखो कौन सा आइटम है, आपको जीजीएस। ओके करो, सॉरी, लिस्ट रिजल्ट में जाओ, एलिमेंट टेबल डाटा। कैसे करना है, एक बार फिर से देखो, वहां पे कुछ हमने अलग क्लिक कर दिया था। एलिमेंट टेबल में जाओ, डिफाइन टेबल हमने कर लिया ऑलरेडी, यहां तक क्लियर है। ओके, नाउ गो टू अगेन लिस्ट रिजल्ट एंड गो टू एलिमेंट टेबल डाटा, जो आपने नाम दिया है उसे सिलेक्ट करो एंड ओके। सो दिस इज योर वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस। सो जो एलिमेंट 1 है ये वाला, उसमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है -80, और जो एलिमेंट 2 है ये वाला,
उसमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है -100। सो माइनस यानी वो क्या होगा, कॉम्प्रेसिव। इसी पे आपको सेव करना है फाइल, सेव एज। डेस्कटॉप के ऊपर जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है उसका पाथ आपको उसे प्रोवाइड करना है। स्ट्रेस सॉल्यूशन, save it and close this. Okay, so this is for the analysis of 2D truss in a ANSYS. So जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, आपको ये प्रॉब्लम आपकी जो राइट अप पेजेस है उसके ऊपर लिखना है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रॉब्लम परफॉर्म दिस एनालिसिस इन ANSYS। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं तो आप कॉलेज में आओ या फिर कहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑब्वियसली नेट के ऊपर से क्रैक वर्जन या कोई और वर्जन, तो आप उससे वो परफॉर्म कर सकते हो और ये रिजल्ट आपको सेव करना है। ओके, अभी तक हमने देखा कि ये लिस्ट कैसे सेव करते हैं, लेकिन अगर ये इमेज सेव करना है तो वो कैसे करना है, गो टू प्लॉट कंट्रोल, इन प्लॉट कंट्रोल गो टू हार्ड कॉपी, टू फाइल, क्या करना है वो देखो, प्लॉट कंट्रोल, हार्ड कॉपी। अभी प्रिंटर तो हमारे पास अटैच नहीं है, इसलिए हम फाइल में, टू फाइल, और यहाँ पे आपको सिर्फ रिवर्स वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। रिवर्स वीडियो क्यों क्लिक करना है, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड यहाँ आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है ना, ये रिवर्स वीडियो करने की वजह से वो व्हाइट हो जाएगा। एंड क्लिक ऑन ओके। तो आपको जो आपने जो फाइल फोल्डर क्रिएट किया है ना, ये फोल्डर में डाटा वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ट्रस्ट 00 नाम से। अभी देखो ये जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ये व्हाइट हो गया। क्लियर? ओके, सो अभी मैं क्लोज करता हूं। सो एनी डाउट इन दिस? Okay, what is the difference between this on node and on node component? Shinde, Sumit Shinde. Okay. आपने ये कहाँ पे देखा on node and on node component? When we apply the stress, sorry, forces ना, loads apply. ओके, इट डिपेंड्स ऑन नोड एंड ऑन नोड कंपोनेंट्स। अभी तो ये ऑन नोड कंपोनेंट कभी मैंने यूज नहीं किया है, तो मुझे अभी ये आई डोंट नो। प्लॉट, सो वो मुझे शो कर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी द नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड व्हाट वी टेक एग्जैक्टली एट व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर आवर एनालिसिस, तो हम उतना ही देखते हैं। तो ऑन नोड कंपोनेंट जो कभी मैंने यूज नहीं किया है, सो नॉट एबल टू से योर आंसर। Okay, any another doubt?